हेलो गाइस, इट्स मी अगेन वशान सिंह और मेरे साथ मेरा पार्टनर आयुष। और आज हम दोनों देखने वाले हैं वीडियो सोल्जर, हाँ, गोरखा के बारे में। तो मुझे काफी बार सजेशन आया था इस वीडियो के बारे में, तो मैंने अकेले में नहीं सोचा। मैं चाहता था कि आयुष के साथ या कोई भी मेरे साथ पार्टनर रहेगा उनके साथ मैं वीडियो देखूंगा। तो आज हम वो वीडियो देखने वाले हैं। और उससे पहले बताना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। और सपोर्ट जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज सपोर्ट देते रहिए। और पता है आपको, आयुष भी वॉर खेलने जाता है आजकल। मैं वॉर? हाँ, तो वॉर खेलता है ना तेरा, यूट्यूब में नहीं आजकल गेम वाला चालू कर रखा है तूने। वो तो ऐसे ही मजे के लिए खेलता होता कि कोई आए बात करे। नहीं, क्योंकि मैंने मोस्टली इसका वीडियो चेक किया है। इट्स लाइक ऑब्वियसली इट्स अ स्टार्टर, और ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एंटरटेन के लिए कर रहा है। और अगर हो सके तो तुम अपना जो तेरा स्टूडियो बनाया ना तूने, एक बार दिखा दे कैसा है। और गेम में ये सिर्फ अपना फेस नहीं लाता है, ये जस्ट बोलते हैं ना जो बड़ करना, और ये कमेंट्री देता है। और ये किड्स के लिए अच्छा है, स्पेशली द किड और द गाइस जो बहुत ज्यादा क्रेज है जिनको गेम्स का, उनके लिए। तो एनीवेज, इसका डिस्कशन खत्म हो गया। इसका लिंक अगर आप जाना चाहते हो तो लिंक मैं दे देता हूँ नीचे। तो अब हम देखने वाले हैं वीडियो गोरखा के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2। तो टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस, लेट्स गो। One, two, and go. Gurkha, World War II. World War II. As soon as the British declared war on Germany in 1939, they immediately started mobilizing troops from the Commonwealth. Men from all over the empire joined the British forces to contribute to the fight. Among them were the Gurkhas. Before the Second World War, the Gurkhas were in service in world for the British Empire. Once enemies during the Anglo-Nepalese War from 1814 to 1816, the British found a mutual respect for the fighting abilities of the Gurkhas, and large numbers volunteered for the British Army afterwards. They came from the Kingdom of Nepal, a small country in the southern soldiers who never questioned orders and did not see retreat as an option. Their motto was, "Better to die than be a coward." Being among the finest soldiers whenever reliable manpower was required. Among the Gurkhas were several tribes that are considered more warrior-like than the others, but in times of war, men from other, less martial tribes were being recruited as well. During the war, nearly 250,000 Gurkhas were recruited by the British in more than 40 battalions, in addition to the 8 battalions of Nepalese army that also entered the war on the side of the Allies. Being a part of the British Indian Army in the first years of the war, the Gurkhas were deployed to the British Middle East territories such as Iraq and Syria, and to northern Africa, where they fought against the Axis forces. It was after December 9th, when the United Kingdom declared war on Japan, that the Indian Army and Gurkhas were engaged on a higher scale, primarily to protect Malaya from the Japanese forces. They would go on to fight in Italy, Greece, Singapore, India, and Burma. Even though the Gurkhas had a special reputation in the British Army, they were not organized as a separate formation. Battalions of Gurkha regiments were deployed to regular units of the army. Being a part of the Indian Army, which was under British command, Gurkhas wore the typical dress, the M37 khaki drill uniform with Bombay bloomers, long-leg trousers that could be buttoned up to become shorts. They also carried the standard 1937 pattern web equipment. By the end of the war, this uniform was replaced with a more practical olive green battle dress for jungle warfare. Gurkha soldiers that were deployed to Africa and later engaged in Italy wore the distinctive British uniform for these campaigns. What was distinctive for the Gurkha uniform was their slouch hat, the trademark of the Gurkhas since the beginning of the 20th century. When not wearing the standard steel helmet, Gurkhas wore their tarai hats, which were actually made of 2 hats sewn together to make them more rigid. Hats were wrapped with a light puggaree and were worn tilted to the right side. Being incorporated into standard British weapons such as the Lee Enfield No. 4 rifle and Bren light machine gun, and American weapons such as the Thompson M1928 and M1A1 submachine guns. However, each Gurkha carried a close combat weapon of his own, a weapon that was distinctive to his Himalayan nation. More famous than their tarai hats were their kukri knives. Kukris were the Gurkhas' favorite close combat weapon and were carried in almost every assault. On numerous occasions, Gurkhas attacked the enemy with a rifle in one hand and a kukri in the other.
Kukris were designed to be cutting knives, their length varying from 16 to 18 inches. They are distinctive for their forward curving blade, which is sharp only on the lower concave side. A legend goes that the shape of the blade resembles the shape of Nepal. Gurkhas were very skillful with their kukris and were known to have inflicted severe damage in close combat on the enemy by using only these knives. Because of this, kukris gained an almost mythical status, with many stories told about them. One of the most famous kukri legends was that a Gurkha has to spill blood every time he took out his kukri from its scabbard. Therefore, if a Gurkha took out his kukri just to show it to someone, he would have had to cut at least his thumb in order to respect the tradition. The Gurkhas proved to be fearless and ruthless warriors in combat. They never questioned orders and always fought vigorously no matter how strong the opponent or how important the battle. Their attack was always followed by the battle cry, Ayo Gorkhali, meaning the Gurkhas are upon you. 12 Gurkhas were awarded the Victoria Cross for gallantry against the enemy during the war. More than 43,000 Gurkhas lost their lives fighting alongside the British Army during World War II. Subscribe and click the notification bell. सीरियसली यार मिलिट्री लोग का लाइफ ना बहुत वैसा रहता है और गुरखास का तो मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड जानता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और मिलिट्री इंडियन गुरखास मतलब नॉट ऑब्वियसली इंडियन गुरखा ही वर्ड यूज करूंगा इंडियन मिलिट्री में जो गुरखास हमारे रहते हैं वो भी मतलब ऐसा होता नहीं कि अगर वो आ गए तो फिर चांसेस अच्छे कि भाई सेफ इंडिया है ना और मिलिट्री फैमिली से मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो फिर हमें भी पता है कि गुरखास आर लाइक यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग है डरते नहीं है किसी चीज से और इसने एक वर्ड जब बोला था क्या होता तो वही चीज हो गया अरे यार डरने से अच्छा है सीना तानो और मर जाओ पर पीछे मत हटो काट दो कुकरी है तो आपके पास एक हाथ में कुकरी करते एक हाथ में तलवार रहता वो राइफल हाँ गन्स रहता है आप दोनों से यूज कर रहे हो यार आपका टेक्निक ज्यादा अच्छा है एंड एक पर्टिकुलर मैं गुरखा के लिए नहीं बोलूंगा ऑल डिफेंस पीपल जो आर्मी वाले उन सब के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग बहुत मेहनत लगती है आप लोग के कारण आज पूरा देश खड़ा है बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट आप लोग बहुत तो देश है एंड यस आई सल्यूट यू पीपल गोरखास मिलिट्री ऑल द मिलिटेंट्स जितने हैं सबको मैं सल्यूट करते हैं और विश की हमें और भी ऐसा कुछ नहीं वीडियोस भी ऐसा और भी मिले जिसमें और जानकारी हो इसमें क्योंकि और एनिमेशन दिखा के किया हुआ है ज्यादा जानकारी भी नहीं है छोटा वीडियो और गोरखास के बारे में क्या बोलना गोरखा का है कि दे आर स्ट्रांग डरते नहीं है वही चाहिए डरते नहीं है वही उससे आधी वॉर जीत गया वो जीते तो है वी लव गोरखास वी लव नेपाली वी लव एवरीबॉडी और डिफेंस वाले लोग को तो सीरियसली मैं बहुत प्यार करता हूँ रिस्पेक्ट देम आई सैल्यूट देम कि उन्होंने वो लोग से बढ़कर कोई नहीं है ठीक है उन पे प्रॉब्लम तो हमारे में प्रॉब्लम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनका साथ हम देने वाले में से है और बस यही है वी लव दिस वीडियो एक्चुअली हमें कुछ जानकारी चीजें मिलने लगी इसमें जैसे अभी टिपिकल बताता हूँ ये था ना पहला तो मतलब कांड ये होता है ना कांड हाँ वो ये रहता है कि ब्रिटिश ने हर जगह कीड़े किए हैं एवरीवेयर जब इंडिया गुलामी में आ गया था उस समय से लेकर जो भी उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाया था वो तो है उसका तो क्या बोलेंगे और दूसरा चीज जब इसमें बोला था इंडियन एंड नेपाली वॉरियर्स जो दोनों मिलिट्री साथ में मिलके हाँ जब यूनाइटेड नेशन मतलब ब्रिटिश ने जब अटैक किया था जापान वॉर चालू हो गई थी तब फिर इनको ही जाना पड़ा था मलाया को बचाने क्योंकि वो भी इंडिया नहीं मतलब ब्रिटिश का साथ ही था तब वो उसको बचाने के लिए फिर गुरखास और इंडियन आर्मी गए थे क्योंकि वही सबसे क्लोज थे जापानी टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट नहीं जापानी क्या था फोर्स है जापानी फोर्स वो भी बहुत स्ट्रांग थे उस जमाने मतलब डेवलप थे वो चलो कैप का मुझे एक चीज बता सकते तेरा ही कैप बोल सकता हूँ मैं तेरा ही कैप है एंड दो चीज से ड्यूअल चीज से बना हुआ है पहला वो टिल्ट इस साइड से राइट साइड से है एंड लेफ्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है कॉल्ड पगड़ी सरदारों में पगड़ी होता है हमारे राजपूत में पगड़ी होते हैं वो सब चीजें तो दो चीज बनी है तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा उस टोपी का ना उस टोपी कितनी इज्जत होगी नहीं वही इज्जत कितनी होती है उस चीज की एंड फिर उसके बाद क्या बात हुआ था मशीन खोखरी सब जानते हैं
मेरे मॉम ने भी देहरादून, हम लोग देहरादून के, तो ऑब्वियसली हमने वहां से लिया था, हम लोग मंदिर में रखते हैं। और इट्स गुड कि लाइक जब कुछ ऊपर मतलब हमको ऐसा लगता है कि किसी से कुछ उतारना है तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ट्रेडिशनल वे में चले जाते हैं। तो उसका भी वो मिथ पता है कि अगर हम उसे दिखाने के लिए भी निकाले तो हमें वो उनके अंदर मुझे आज पता चला ये, क्योंकि मोस्टली तो मैं हमेशा अपने अभी मंदिर से उठा के हम लोग ऐसे खेलते रहते हैं, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, आप लोग के इधर पे ऐसी चीज है, तो अभी मैं सोचता हूँ कि मैं अभी नहीं निकालूंगा, मंदिर में पड़ा वहीं रहने दूंगा और मेरा भी अंगूठा मांगेगा, पता चला हुआ। फिर उसके बाद नो ऑफेंस गाइस, बस ऐसे मजाक मतलब सीरियस मत लेना। और उसके बाद हाँ, मिलिट्री में ये चीज है कि आप प्राउड, ये मोमेंट है कि 12 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरी चीज वो बुरी चीजें लगी, बट वो भी प्राउड है उस फैमिली के लिए कि उन्होंने वो शहीद हुए, 43,000 अबाव 1000 से ज्यादा लोग की डेथ हुई। बट दैट्स बुरा है, लेकिन ये चीज अच्छी कि शहीद आप अपने देश के लिए हुए हो, बस ये प्राउड है। Anyways guys, this is me Ushan Singh. Thanks for watching my video with Ayush. And Ayush, thank you so much, तूने मुझे थोड़ा समझा दिया, चीजें मिसप्लेस हो जाती है। और या एंड गाइस, इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो गेमिंग के लिए बहुत एडिक्ट है ना, वो प्लीज आ जाइए, और इसको लिंक को क्लिक कीजिए, नीचे दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा देख लो और मजे करेंगे। गालियां दे हर कहानी। Anyways, bye guys, दोस्तों, बाय। गाइस, मैं बोल रहा था